हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेक्चर कैपेसिटर्स का पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होता है दैट इज कैपेसिटर। अब अगर हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें कैपेसिटी कितना चार्ज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले जो चीज पढ़ने वाले हैं हम कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के तरीके क्या हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दैट इज पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम केस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका हम पढ़ने वाले हैं आज दैट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज। मेन टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कैपेसिटर का सिंबल ओके, टू और मोर देन टू capacitors are said to be connected in series. This is series combination of capacitors. Two or more than two capacitors are said to be connected in series if we can proceed from one point to another point through only one path. अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्टेड कब बोलोगे? जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सिर्फ एक ही पाथ से जा पाए, एक ही रास्ता हो जाने का। सो दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैपेसिटर्स इन सीरीज। ओके, सो आपके पास प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट को गया, इस पे योर कॉम्बिनेशन इज प्लस माइनस Suppose Q charge is given to the capacitor which raises its capacity let V be the potential difference across the combination. This is V2. Let V be V3 with the potential difference across. Okay. Now, two or more than two capacitors are said to be connected in series if this is first capacitor, this is second capacitor, this is three. हमने इस केस में तीन लिए हैं। दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स हो सकते हैं, 3, 4, 5 अप टू n टर्म्स आप ले सकते हो। अभी हमने तीन लिए हैं, बाद में हम इसको जनरल फॉर्मूला जो है उसमें हम n टर्म से रिप्रेजेंट करके वो ले लेंगे। ओके, सो टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if negative plate of first capacitor is connected to positive plate of
second capacitor. Negative plate of second capacitor is connected to positive plate of third capacitor and so on. Two or more than two capacitors are said to be connected in series if negative plate of first capacitor is connected to positive plate of second capacitor, negative plate of second capacitor is connected to positive plate of third capacitor and so on. Okay. अब हम क्या करते हैं बच्चे, let us take three capacitor, तीन capacitor ले लिए having capacities C1, C2, C3. Let us take, हम ले लेते हैं, let us take three capacitors having capacities C1, C2, C3 connected between points A and B. Okay, let V be the potential difference across the combination. जो combination है उसके across V हमने potential difference माना. Okay, so let V1 be the potential difference across C1, V2 is potential difference across C2, V3 is potential difference across C3. So then what will be V equal to? Total potential difference, that is V1 plus V2 plus V3. Okay, give this equation number 1. But we know, हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे Q is equal to CV कैपेसिटेंस में. यहाँ से you can find V किसके इक्वल आ जाएगा? Q upon C. So but V किसके इक्वल है बच्चे? Q upon C. ओके, C बट कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो हम CS से डिनोट करेंगे. ओके, V1 किसके इक्वल आएगा बच्चे? Q अपॉन व्हाट इज V1? पोटेंशियल अक्रॉस C1, सो ये आ जाएगा C1 प्लस व्हाट इज V2 इक्वल टू? V इज इक्वल टू Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. ओके, सो टेक Q कॉमन फ्रॉम हियर. Q upon CS किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? Q, take Q common, so that will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q gets cancel out, so 1 upon CS will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay, so this is the result of what if three resistors are connected in series. For example, you have got more than 3 resistors. So for n resistors, capacitors, for n capacitors, अगर n capacitors की बात करें, so capacitors equivalent capacity of n capacitors किसके इक्वल आ जाएगा? That is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is for 3. Okay, more than 3 ऐसे ही ऐड होता जाएगा plus so on to 1 upon Cn. Okay, this is equivalent capacity of n capacitors. So from here you can find the results. So what is this? Equivalent capacity. लेकिन क्या है बच्चे? रेसिप्रोकल में है. So इसको हम क्या पढ़ने वाले? Equivalent capacity reciprocal, or you can say reciprocal of equivalent capacity. लेकिन कितने capacitors की? Of n capacitors connected in series is equal to sum of reciprocal of individual capacities के reciprocal का sum. So फिर से what is the results में आप क्या बोलने वाले हो? इसको पढ़ोगे reciprocal equivalent. Hence the reciprocal of equivalent capacity of n capacitors connected in series is equal to sum of reciprocal of individual capacities. So यहां से अगर आप देखोगे बच्चे जो equivalent capacity है, equivalent capacity that is less than individual. अगर आप बात करोगे C1, C2, C3, Cn,
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी हमारी कम आ रही है, बिकॉज इट इज इन रेसिप्रोकल। ओके, दूसरी बात आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि इफ यू कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज यू विल गेट मिनिमम कैपेसिटी। अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपको मिनिमम कैपेसिटी मिलेगी, और जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हम पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी मिलती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर हमें मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, सो वी विल कंबाइन, हम क्या करेंगे कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे, और हमें मैक्सिमम ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, ज्यादा चार्ज को स्टोर करना है। सो हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में, जब हम पैरेलल पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि वी गेट मैक्सिमम कैपेसिटी व्हेन वी कनेक्ट कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, सो जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। सो व्हाट इज कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में मतलब कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, या तो उनको सीरीज में कंबाइन कर सकते हो आप, या तो पैरेलल में कंबाइन कर सकते हो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो होता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहें तो हमें एक ही पाथ हो जाने का। सो अगर हम ऐसे अगर कैपेसिटर्स को जोड़ दें वो होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सो दूसरी आपको मैंने डेफिनेशन बोली, अगर हम नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, then this combination is capacitors in series. So let us free capacitor having capacity C1, C2, C3. Let V be the potential difference across the combination. V1 is potential difference across C1, V2 is potential C2, V3 is across C3. So V किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज पुट की, so we get this relation. सो जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले कैपेसिटर्स इन पैरेलल। थैंक यू वेरी मच।